अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, आप शुरू कर लें मैडम। जी सर ये फिर केसेस असाइन कौन करेगा? डॉक्टर आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर जरमीना मैडम कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। फर्स्ट केस। डॉक्टर जरमीना। मैम मैं ले लेती हूँ। ठीक है, ले लो। I have been presented with the spot image of a frontal projection of a skeletally mature patient of right upper limb, including the humerus and the clavicle, and also the lung window, lungs too. Here I can appreciate that the humerus is the humerus is dislocated anteriorly and lie close and inferior to the in location with respect to its normal anatomical location, and there is increased acromioclavicle distance and coracohumeral distance too. So there is no abnormal finding in the visualized lung. However, मतलब clear नहीं है, blur है image. बाकी how there is white soft tissue density and soft tissue mass swelling is also noted surrounding area, and the rest of the image is unremarkable. So summarizing my finding, this is the most likely anterior inferior dislocation of the humerus, and I would like to see the further MRI images to see further hillside deformity and glenoid and glenoid deformity and labral defect. ठीक है। What is the mechanism of anterior shoulder dislocation? Fall on the outstretched hand. Fall on the outstretched hand is not mechanism. शोल्डर की डिसलोकेशन एंटीरियरली होती है, मोस्ट कॉमन शोल्डर डिसलोकेशन है। मैकेनिज्म जो है इसका वो है फोर्स्ड एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सटेंशन। Okay, this was asked by me in the viva and आपने बिल्कुल इसको ठीक ही लेके चले। there is the anteroinferior dislocation of the shoulder and there is no obvious
इसमें हमें कोई भी बोनी फ्रैक्चर नहीं मिल रहा, सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग है, obviously it can be because of the joint effusion and because of the post traumatic some soft tissue edema, and we'll proceed with the MRI. Then please tell me about the Hill-Sachs and Bankart. Hill-Sachs deformity is on the posterior lateral aspect of the humerus, and it is a bony infection. And the Bankart lesion is there are two types, reverse and Bankart and reverse Bankart. Bankart lesion is seen in the anterior dislocation and reverse Bankart on posterior dislocation. And in Bankart, there is the anterior inferior aspect of the glenoid labrum, और जो reverse होता है वो posterior inferior aspect of the posterior superior aspect of the glenoid labrum में. ठीक है, वो पोस्टर सुपीरियर होता है, वो ये एंटर इंफीरियर होता है, और मैम ये लेवरल डिफेक्ट है जो बोनी बैंकार्ड है उसमें ऑशियस डिफेक्ट नहीं नजर आएगा. ठीक है, लेब्रल हो तो सिर्फ वो बैंकार्ड आएगा, बोनी बैंकार्ड होता है. ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो हम इसमें यही चीजें ही देखेंगे एंटीरियर में. ये इतना सही केस था और इसके इतने सही क्वेश्चन थे, बाकी मुझे इससे ज्यादा याद नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है. मैम पोस्टीरियर डिस्लोकेशन तो इलेक्ट्रो क्वेश्चन से होगा ना? हाँ, उसमें फिर सारी फाइंडिंग्स रिवर्स हो जाएंगी जो एंटीरियर डिस्लोकेशन की होती हैं. इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट जो है वो क्लोज रिडक्शन होगी एंड इमोबिलाइजेशन फॉर द 6 month until there is no other complication like Hill-Sachs or Bankart lesion or the superior labral tear. If the other lesion or still हमें complication हो गई तो उसकी treatment according to the complication will be altered. ठीक है, I think this was the first. This is the second case. मैं ले लेती हूँ डॉक्टर मरियम. ठीक है. This is a X-ray knee joint, frontal and the lateral projection of a patient in which I can appreciate there is a reduced joint space is noted majorly in the proximal shaft of the femur. I can appreciate there is a mixed lytic sclerotic lesion is noted with a moth-eaten appearance. An wide zone of transition is noted. However, I cannot appreciate any cortical break, or and there is a mild periosteal reaction is noted. I can also appreciate similar appearance within the proximal fibula. There is a mild soft tissue swelling is noted. So, based on these imaging findings, I'm thinking of the aggressive looking disease process of the proximal tibia, and the top of the differential is the lymphoma, and the other differential diagnosis may include the any primary bone lesion, such as it can be osteosarcoma if the patient is old age. Further, I would also like to see the whole X-ray of the patient, and further MRI would be helpful for the local staging. So this is the MRI T1 अच्छा, weighted. जी. डॉक्टर फातमा, MRI this is the same case but the location is different. मुझे उसमें same MRI नहीं मिल रहा था जो मुझे X-ray था, तो that's why the lesion is same. Please proceed. अच्छा, ठीक है, ये एक ही सीक्वेंस है इसके ऊपर. हाँ जी. अच्छा, this is the MRI T1 weighted sagittal slices of a patient in which I can appreciate there are heterogeneous low signal intensity lesion is noted involving the medullary cavity of the femur with the wide zone of transition, and there is a however no periosteal reaction is noted on these MR images, and there is no soft tissue abnormality is noted. So it is confirming my findings of on the radiograph of the aggressive looking disease process, such as primary lymphoma of the bone, and
Osteosarcoma is less likely as I cannot appreciate any soft tissue abnormality on these MR images. ठीक है, And very further, good. I will refer the Lymphoma patient for ही है. further CT staging and बायोप्सी तो शायद इसमें नहीं कराते बोन बायोप्सी, लेकिन सीटी स्टेजिंग हो सकती है. हाँ, इसके अलावा आप MRI फुल जो है ना वो लेग का करवाएंगे, फ्रॉम द जॉइंट टू जॉइंट, लाइक फ्रॉम द पेल्विस टू द नी जॉइंट और फ्रॉम द एंकल जॉइंट सिंक्रोनसली एंड देखने के लिए. ठीक है, दिस वाज द केस ऑफ दिस वाज द सेम केस बट द लियन एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो लियन क्रॉस कर जाती है जॉइंट को, दैट इज मोस्ट लाइकली बिनाइन लियन. ठीक है, बट द आप अपेयरेंस जो थी ना वो दैट वाज द परमिएटिव. क्या जब परमिएटिव लियन आ जाए तो हम बिनाइन के बारे में लेस लाइकली सोचते हैं. तो वो नहीं, फ्रॉम द मिड ऑफ द फीमर अप टू द मिड ऑफ द टिबिया. ठीक है, जो मेरा केस था उसमें हमारे पास ये वाली लियंस थी. तो मैंने ऐसे ही प्रोसीड किया, परमिएटिव लियन and that is crossing the joint, and soft tissue involvement was very much less likely. There is also some destruction. यहाँ पे भी आप देखें तो tibial plateau की थोड़ी सी destruction हो रही है. ठीक है, तो soft tissue will be involved, but the lesion जो कि हमारी ज्यादातर bone marrow को involve करे, cortex को spare करे, and द पैटर्न इज परमिएटिव. तो हम सबसे पहले लिम्फोमा के बारे में सोचते हैं, दूसरा हम इसमें ओस्टियोमाइलाइटिस के बारे में सोचते हैं. ठीक है, बट द सॉफ्ट टिश्यू आर इंटैक्ट, इसमें हमें कोई इतना नहीं मिल रही, तो ओस्टियोमाइलाइटिस इज लेस लाइकली. फिर उसके बाद हमें सिक्वेस्ट्रम, वो चीजें भी सारी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन जॉइंट को क्रॉस कर सकती है. वो मैंने एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखा था कि लिम्फोमा पूरी आधी फीमर और आधी टिबिया को इन्वॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो इसी तरह से जब बिल्कुल इसी तरह का ही MRI था, सेम MRI, लिम्फोमा का जो पैटर्न है ना दैट इज बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट. तो जब बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट हो, परमिएटिव लियन हो, आप देखें सॉफ्ट टिश्यू बिल्कुल इंटैक्ट पड़े हैं. इसमें थोड़ी सी इसमें आ रही है सॉफ्ट टिश्यू में पोस्टीरियरली ना, तो दैट इज मे बी जॉइंटिफियन. सो सॉफ्ट टिश्यू इंटैक्ट है, मेरो इतनी इन्वॉल्व है, इसमें हमें कोई कुलैक का फॉर्मेशन, कोई सिक्वेस्ट्रम एटसेट्रा नहीं नजर आ रहा. तो यू नैरो डाउन योर डायग्नोसिस, स्टिक टू योर डायग्नोसिस, दैट इज लिम्फोमा और अदर इज अ मेटास्टेसिस. ठीक है, तो मैम आपने लिम्फोमा एग्जाम में क्रॉस कर अपने डिफरेंशियल नैरो डाउन करके 1 या 2 में ही रखने होते हैं. यूजली में हाँ, क्रॉस करता है, मतलब जी रब करता है वो तो. क्रॉस बेसिकली हमने ये पढ़ा था, शायद हम थोड़े से गलत थे, शायद मैं गलत थी, कि जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते ज्यादातर. जो मलिग्नेंट डिजीजेस होती हैं वो आपकी ना, हमने मिलियरी ऑस्टियोसिस करती है क्रॉस, और 2-3 और हमने पढ़ी थी ना. तो बट द थिंग इज कि malignancy is also can also involve in the joint, like osteomyelitis की तरफ ज्यादा फिर आप सोचते हैं जब आपकी हो ना कि हाँ जॉइंट भी इन्वॉल्व है और उधर से भी फीमर भी इन्वॉल्व है, टिबिया भी इन्वॉल्व है, तो आप osteomyelitis की तरफ जाते हैं. बट द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रक्शन आपने अपना देखना है, सब चीजों को कंसीडर करना होता है उस वक्त ना, कि नहीं ये चीज नहीं है तो ये नहीं हो सकती. बस आपने अपन बेसिकली आपकी थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बस ऐसे ही था, तो मैंने MRI बता दिया था. MRI पे मैंने कहा था दैट सर देयर इज आल्सो पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस भी लगे हुए थे, तो आई सेड देयर इज एनहांसमेंट of the mass lesion, so most likely diagnosis is the lymphoma, other is a metastasis, as soft tissues are not involved, no evidence of any abscess formation, so less likely is osteomyelitis. I will ask the history of the patient and numbers. 3 मिनट होते हैं, उसमें आपने कितना ही बोल लेना होता है. यही चीजें होती हैं, 2 इमेजेस लगाएं तो सिर्फ आप इमेजेस से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके अलावा आप ज्यादा बोल ही नहीं सकते. अगर 2 हो तो 1 हो, तो 1 में आपने फिर बोलना होता है. ठीक है, ये वाला ले लें. डॉक्टर फातिमा, किसी को ये असाइन करते हैं आप? डॉक्टर सरमीना है? हेलो, मैम मैं ले लेती हूँ, कोई नहीं है तो. मैं ले ठीक लूँ है please? ओके जी, मैम. जिसकी बारी नहीं हुई वो ले ले. I'm provided with X-ray hands, bilateral hands, where I can appreciate that there's a lytic lesion, well-defined lytic lesion is noted in the
second metacarpal of the left hand, proximal second metacarpal region, head of second metacarpal, and with it is having its expansile lytic lesion with a few internal septations as well noted, but I cannot appreciate any significant cortical destruction or cortical defect noted. Similar liquid lesion is also appreciated in the third third middle pharynges and middle phalanx as well. And however, I cannot appreciate any such significant periosteal erosion on the radial side in the visualized bones, and no evidence of any soft tissue swelling or any hyper calcification seen as well. The rest of the visualized bones appear normal. No evidence of any atrostolysis is well appreciated. So findings could be of however, I cannot appreciate any significant periosteal reaction radial aspect, but still findings could be of a brown tumor in case of hyperparathyroidism or any lytic mets in this region. Lytic mets and brown tumor. मैम ठीक है, ब्राउन ट्यूमर के बारे में तो ठीक है, लेकिन आप लिटिक मेट्स मतलब हैंड्स में लेस लाइकली होती हैं दैट आर ओनली ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, जिसके आपको ना फ्लैंजेस यस में मैम, अगर मिलते ये हैं। सिगमेंट जैसे डाइफ्यूजर रीजन में तो मैं एनकॉन्ड्रोमा उसकी तरफ जाती तो हाँ बिल्कुल, हाँ एनकॉन्ड्रोमा हाँ मेटाडायफेसिस पे ही होता है, एनकॉन्ड्रोमा जरूरी नहीं है जी जी डायफेसिस में हो, दैट्स लोकेशन इज ओनली द मेटाडायफेसिस। और ब्राउन ट्यूमर का जो फर्स्ट डायग्नोसिस डिफरेंशियल आता है वो एनकॉन्ड्रोमा ही आता है, ठीक है, उसमें आपको ठीक मल्टीपल है लिटिक लेयर मिलते हैं, ठीक है। दैट्स योर आंसर इज ट्रू, मैम दैट इज द मैम फर्दर हम केस। इसको पैराथायराइड हार्मोन की प्रोफाइल करवाएंगे बिल्कुल, और उसके मेटाबॉलिक वर्कअप जो भी है, बाकी अगर स्केलेटल सर्वे अवेलेबल है नहीं ठीक वो है, उसको देखेंगे। क्या देखेंगे? मैडम उसके अंदर हम बाकी जो एक तो वैसे तो सॉरी कुछ ज़हन में नहीं आ रहा। पेपर पॉट स्कल। पेपरवॉट स्कल देखेंगे और स्पाइन को हम देख सकते हैं कि उसके अंदर अगर जैसे स्पाइन के चेंजेस हैं हाँ ठीक और है, वैसे सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशंस देख सकते हैं अगर किसी और जगह पे अवेलेबल हैं, सेकेंडरी पैराथाइड हाइपरपैराथाइडिज्म है। ठीक है। इसमें हमारे पास subperiosteal bone resorption आती है on the stress areas that are involving the distal end of the femur। मैम इसमें नहीं नजर आ रही थी मुझे इतनी सिक्वेंस ना। इसमें नहीं है, ठीक है, तो हमारे जो लोअर लिम्स है ना उसमें भी हमें मल्टीपल ब्राउन ट्यूमर मिल सकते हैं स्ट्रेस एरियाज में हमें। subperiosteal bone resorption is a very specific feature for the hyperparathyroidism, ठीक है। अगर जैसे स्पाइन पेपर पॉट स्कल ऊपर से इसी तरह ही उन्होंने पेपर पॉट स्कल लगा दिया था, स्कल का ठीक है एक्सरे लगा दिया था, so that was a paper pot skull, and I said this is the case of hyperparathyroidism। so उन्होंने कहा नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपने भी एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, then what you see on ultrasound? अल्ट्रासाउंड पे हमें डिफरेंट थायराइड थायराइड नहीं, अल्ट्रासाउंड में तो हमें पैराथायराइड रीजन सॉरी मैम मुझे वहां पे नहीं आ रहा है अल्ट्रासाउंड पे हम करेंगे थायराइड ग्लैंड का, मैंने उन्हें कहा था हम नेक का अल्ट्रासाउंड करेंगे और मैं पैराथायराइड देखूंगी, तो उन्होंने कहा था नेक को नहीं, आप सिंपल का ही थायराइड का करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, तो कहते हैं किस तरह से नजर आते हैं, मैंने कहा सर हाइपोएपिक का में नजर आते हैं, जो कि जो पोस्टरैटरल है, एस्पेक्ट ऑफ द नीचे हाँ इंफीरियर एस्पेक्ट में। पोस्टरलैटरल बेसिकली इंफीरियर रिस्पेक्ट पे हमारे पास जो है ना वो हम नजर आते हैं, दैट विल बी इनलार्ज होंगे तो हमें हाइपोइक से एरियाज नजर आएंगे, तो कहते हैं ठीक और है। फर्दर हम कंफर्मेशन के लिए अगर हमें न्यूक्लियर स्कैन अवेलेबल है तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, सिस्टम में भी स्कैन कर सकते हैं। सिस्टम ईबी स्कैन भी हम करा सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन आल्सो सी द कॉज लाइक रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी, ठीक हाइपोपैराथायराइडिज्म अगर हम टॉपिक पे बेसिकली उन्होंने भी ऐसे ही जंप किया था, वो हाइपोपैराथायराइडिज्म के टॉपिक पे चले गए थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं,
MRI पे कैसा नजर आएगा थायराइड और हाँ, पैराथायराइड पैराथायराइड MRI पे मैम ग्लैंड? ग्लैंड एनीवन एल्स? कोई और बता दे, MRI पे कैसा नजर आएगा? डॉक्टर फातिमा? हेलो हाँ, MRI पे पैराथायराइड ग्लैंड कैसा? पैराथायराइड ग्लैंड कैसा नजर आएगा? हम्म। हाँ जी। अच्छा, इसकी इन्हांसमेंट पूछ रही हैं या नहीं, वैसे ही इसका जो पैटर्न होता है, इसका पैटर्न होता है, आई थिंक इट इज हाइपो इंटेंस ऑन T2 या फिर हाइपर T2 है के ऊपर, और डिलेड इन्हांसमेंट। ब्लीड एनहांसमेंट होती है वैसे इसकी में, लेकिन अच्छा, वो तो फिर हम उस पे भी चले जाते हैं 4DHCT, अगर आप हाँ, देखें। 4D, मेरे जहन में 4D CT आ रहा था, क्या 4D हाँ CT बताएं, शायद फोर डी आप सी टी क्या होता है? व्हाट इज फोर फोर डी डी सी सी टी टी फॉर द पैराथायराइड? 4D CT में ये होता है कि ये जो है ना, बाकी ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है, उसकी हम्म। निस्बत ये जो है ना, ये हाइपो नजर आता है हमें, ठीक है, देखिए क्योंकि फोर डी इसकी सी टी का डिलेड इन्हांसमेंट। क्या, जी जी। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ, कैसे हम 4DCT करते हैं और क्यों 4D से कहा जाता है? प्लेन क्योंकि इसके लेंगे। अंदर फोर हम्म। फेजेस लेते हैं ना। फोर नहीं, तीन तीन फेजेस लेते हैं इसको 4D, इसमें तीन फेजेस लेते हैं। प्लेन लेते हैं हम, इसमें आर्टीरियल लेते हैं, और इसमें हम पोर्टल वीनस लेते हैं। प्लेन में हमारे पास जो है ना ये दैट इज लेस डेंस। आर्टीरियल में इसकी इन्हांसमेंट होती है थायराइड की मोर एज कम्पेयर टू पैराथायराइड। ठीक है, फिर हम पैराथायराइड। जब जब हम डिलेड लेते हैं तो उसमें हमारे पास वॉश आउट जो है वो थायराइड का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस पैराथायराइड। तो ठीक है, वो ठीक है। वॉश आउट हमने देखना होता है, और ये इसको 4D इसलिए कहते हैं बिकॉज हम ज्यादातर सिर्फ आर्टीरियल फेज ही लेते हैं नेक का, हम पोर्टल वीनस या डिलेट फेज नहीं लेते। तो इस वजह से इसकी फेजेस बहरहाल 3 ही थी, इतना मुझे पता है। और इस तरह से आपने एक दफा इसको फिर भी देख लेना है 4DCT के बारे में, क्योंकि उस वक्त हमें पढ़ाया गया था, एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही हमें बताया गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हो रहा है बहुत सारे सेंटर्स में 4DCT इज मोर स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू सिस्टम एबी स्कैन। ठीक है। ठीक है हम्म, और इसके बाद आपने ना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म, आप इसके कॉजेज बताएं। मैम। प्राइमरी में हो सकता है, कोई एडिनोमा हो सकता है, ठीक है। पैराथायराइड एडिनोमा हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, और सेकंड नहीं, देखें हाइपरपैराथायराइडिज्म, सूडो हाइपरपैराथायराइडिज्म, सूडो सूडो हाइपरपैराथायराइडिज्म, ठीक है, और ड्यू टू द रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट इज द कॉज इन द रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी, मतलब रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी की वजह से क्यों हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है, बताएं। मैडम उसकी जो मेटाबॉलिक, जो पैराथायराइड हार्मोन का जो मेटाबॉलिक है, वो उसका जो उसका रेगुलेशन होता है हार्मोन का, वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है रीनल डिस्ट्रॉफी। ओके। हाउ हाउ ये तो उनको भी पता है रेगुलेशन। रिसेप्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इसके, रिसेप्टर्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं ना सूडो सूडो में। मैम रीनल में असल में हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती विटामिन डी की, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता बेसिकली हमारे पास मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है, जिसमें हमारे पास हाइपो कैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन्स जो हैं उनको सिग्नल्स जाते हैं। एंड देन पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज उसी वक्त ही होती है जब हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया रिप्रेजेंट करता है बॉडी में। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली इंक्रीज करता है टर्नओवर बोन का, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है हमें, उसका फंक्शन ये है कि उसने कैल्शियम को मेंटेन करना बॉडी में। ठीक है, मिनट। ठीक है, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन इज वेरी नेसेसरी इन आवर बॉडी। तो जैसे ही कैल्शियम लेवल कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा टू मेंटेन दैट लेवल। तो इस वजह से रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी में हमारे पास मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है, हाइपोकैल्सीमिया हाइपरफॉस्फेटेमिया, दैट्स इनवोक इट्स इस रिलीज।
फिर उसके बाद सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है जिसमें हमारे पास रिसेप्टर्स में रिसेप्टर डिसेंसिटाइज होते थे, रेजिस्टेंस होती है। सूडो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास लेवल्स इज नॉर्मल ऑफ कैल्शियम एज वेल एज द पैराथायराइड हार्मोन्स, उसमें भी हमारे पास जो कैल्शियम के रिसेप्टर्स हैं एंड द रिसेप्टर्स ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन उनमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन आती है। बहरहाल ये आपने पढ़ लेना है, दैट वाज आस्क्ड मी इन माय वाइवा। तो मैंने चारों ही बताए थे कि ये सूडो सूडो, उनका सूडो सूडो क्या होता है, सूडो क्या होता है, रिनोलोस्ट्रोफी क्या होती है। तो वो इस तरह से ना ठीक आप क्वेश्चन करते गए थे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट केस कोई ले ले, मुझे पार्टिसिपेंट नजर नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं असाइन कर देती। डॉक्टर फातिमा किसी को असाइन कर दें। हाँ डॉक्टर साइमा। डॉक्टर जी, आई एम प्रोवाइडेड विद द एक्स-रे lumbosacral हैंड्स spine रेज and the कर ले आप pelvis लोग, प्लीज हैंड रेज कर ले ताकि मुझे पता चल जाए। and the lateral projection in which I can appreciate the striking abnormality is that the lower end of this sacral bone is absent both on the AP and the lateral views. I can appreciate there is fusion of the bilateral iliac blades at the lower end of the lumbar spine, and I and the configuration of the L5 vertebrae is also not normal. I can appreciate there is irregularity of its margin. The oral bone density is also reduced, predominantly in the pelvic bones. Uh, However, the pubic bones are well visualized, and the hip joints also appear normal, and the lower end of the lower ribs also appear normal. There is no evidence of any spinal defect on the provided images. Upper visualized lumbar vertebrae. So the findings are in favor of sacral agenesis with the type 4, as there is fusion of the bilateral iliac blades. Further, I would correlate with the MRI of this patient to see for associated caudal regression syndrome. इलियो लंबर, इसमें हमारे पास है इलियो Articulation. आर्टिकुलेशन। वहां पे मैंने एनास्टोमोसिस कहा था और मुझे एनास्टोमोसिस ही आता है, ठीक मतलब है, मेरी जबान में मैं आर्टिकुलेशन ही बोलना है, आपने एनास्टोमोसिस नहीं आइलियो बोलना। आइलियल लग रहा है, मतलब टाइप 4 लग रहा है, मुझे लग रहा है आइलियो आइलियल है शायद, क्योंकि वो फर्स्ट इमेज में लग रहा है दोनों फ्यूज ही हैं ऑलमोस्ट। हाँ मतलब वहां पे खैर क्लियर था, कहीं कहीं ऐसे लग रहा है कि वर्टिब्रल बॉडी के साथ हो रहा है, कहीं ऐसे लग रहा है कि आइलियो आइलियो। बहरहाल आपने वहां पे इसको टाइप 4 3 जो भी हो उस पे आपने फौरन से कह देना ताकि इस पे आपके क्वेश्चन हो ही ना, ये आपने खुद ही आंसर दे देने। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ ऑर्डर रिग्रेशन सिंड्रोम। देन प्रोसीड करें इसको, इसको लास्ट तक आपने लेके जाना है, इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी। Further, I would correlate with the MRI to look for associated blended cord and the high and the absence of the chorda equina in this patient. This patient will be the findings are related to the blunted cord, and this patient will be having neurogenic symptoms, and there will be neurogenic bladder in this patient, and there can be an associated VUR. I would correlate with the MCUG and the clinical findings of this patient related to this, ठीक है, and विल सी द वेक्ट्रल। अच्छा, बुक में associated लिखा हुआ था abnormality. कि वेक्ट्रल एसोसिएशन नहीं है, पता नहीं वो एडिशन पुराना हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहरहाल Lethargy रेडियोपीडिया पे और इसी syndrome होता है। रेडियोपीडिया पे लिखा हुआ था कि देयर इज एसोसिएशन ऑफ वेक्ट्रल एज वेल एज क्राइनियो ट्राइएड। अच्छा, ये क्राइनियो ट्राइएड ASP, क्या होता है? एएसपी, वेरी उसमें गुड। एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन होती है, प्रीसेक्टल मास होता है, और ये साथ सेक्टल एजेनेसिस एस4, होती है। हाँ जी, आपने ना इसको याद रखना है, एएसपी। Latent. ठीक है, A for anorectal malformation, S से हमारे पास sacrococcygeal osseous defect और any Maslian और pre-sacral mass for the P stand for P। ठीक है, इसमें हम यही देखेंगे कि हमारे साथ साथ इसमें associations क्या क्या हैं। तो ये केस बेसिकली है, तो इसी केसेस को आपने प्रोसीड खुद ही कर लेना है कि इसमें मैं सारी वेक्टोरल एसोसिएशन देख लूंगी जो होती हैं, जो
लेस इन्वेसिव वो है इन्वेस्टिगेशन, वो करा लेंगे, बेरियम करा लेंगे टू सी द ट्रेकियोसेफेगल एनोरेक्टल फिस्टुला। मार्किंग। हाँ, ठीक। मेरियम एनीमा करा लेंगे उसके लिए, रेक्टल मैलफॉर्मेशन और जो भी है बहरहाल। इसको आपने इस तरह से ही करना है, और ठीक है, आपने इसमें कैटेगराइज भी कर देना है कि इसमें सैक्रोलिजेनेसिस की क्या टाइप्स हैं। ये इस तरह से इजी सा ही था। Ma'am, P stands for? प्री फी सैक्रल सेक्टरल मैथ। मास, लाइक मेनिंगोसील हो सकती है, उसमें हमारे पास मेनिंगोएन्सेफलोसील, कुछ भी इस तरह से प्री सैक्रल मासेस जो हैं वो उसमें कैटेगराइज हो जाएंगे। न्यूरोजेनिक ब्लैडर देख लेंगे, टीथर कॉर्ड देख लेंगे, कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स और स्पाइना बिफिडा एटसेट्रा। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट केस। Okay. This is the X-ray bilateral hip joint or the pelvis AP projection, which I can appreciate. There are faint soft tissue calcification are noted that are widely distributed in along the medial and the lateral aspect of the right hip joint, and also sheet-like calcifications. And where the bilateral hip joint space also appears mildly reduced with the secondary osteoarthritic changes. And I can also the sacrum is not clearly visualized. It may be due to projectional or due to over-distended bladder. However, the main finding I can appreciate are the soft tissue calcifications that are within the along the lateral and the medial aspect of the hip joints bilaterally. With the so the top of the differential is the myositis ossificans. Other differential diagnoses may include tumoral calcinosis. And I would ask the history of the patient, if any history of the post-traumatic or the bedridden patient, or for शीट लाइक सॉफ्ट टिश्यू this कैल्सिफिकेशंस किस में होती हैं? शीट लाइक सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशंस शीट लाइक टफ टिश्यू कैल्सिफिकेशन जो होती हैं वो तो उसमें एक तो मायोसाइटस ऑसिफिकेंस में होती हैं, इसके अलावा जो है वो डर्मेटोमायोसाइटिस में होती हैं। डर्मेटोमायोसाइटिस, मोस्टली हाँ, डर्मेटोमायोसाइटिस, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा जो है ना, फिर उसमें आपकी कैल्सिफिकेशंस आपकी बढ़ती जाती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ossified. मायोसाइटिस ओसिफिकेंस? There are four types of myositis ossificans: myositis ossificans progressiva, and the myositis ossificans circumscripta, and the fibrosis type, or the one that involve the fingers or the joints. लेकिन ठीक है, उसका नाम मुझे प्रोग्रेसिवा नहीं वही याद। थी ना जिसमें हमारे पास लिगामेंट्स एक्सेट्रा वो बाकी सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब सीफ शीट लाइक सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशंस आ जाएं, बोन्स आपकी बिल्कुल इंटैक्ट हो, तो आपने मोस्टली जाने रोमेटोमायोसाइटिस की तरफ। दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी होती है। इट इज ऑल्सो associated with the arthritis, ILD, paraneoplastic syndrome, इसमें हमारे पास dusky red rashes आते हैं। And we also ask the history of the patient for the dysphagia. There is increased level of the creatinine kinase, increased ESR and CRP। ठीक है, तो इसमें हमारे पास when there is skeletal calcinosis universalis होता है, जब extensive calcification होती है, and then the basically skeletal muscles involved होते हैं dermatomyositis में, skeletal muscles only। So the esophagus का जो upper part होता है ना हमारे पास, up to the mid of the esophagus, that is formed by the skeletal muscles। So mostly हमारे पास dysphagia या हमें narrowing जो है irregular सी, वो हमें upper part of the esophagus में ही नजर आएगी। ठीक है, skeletal muscle, upper esophagus involvement and paraneoplastic etc etc, ये आपने देखनी है। ठीक है, जो मेरा केस था उसमें थोड़ी सी डिफॉर्मिटी थी ऑफ द हिप जॉइंट, सो आई सेड देयर इज वेलगस डिफॉर्मिटी। लेकिन वो वेरस डिफॉर्मिटी होती है जब आपके दोनों हिप जॉइंट्स, ये आप देख लें। ठीक है, एक दफा मुझे थोड़ा सा ना इतना नहीं क्लियर हो रहा, वेरस और वेलगस डिफॉर्मिटी, बिकॉज ये इस तरह से कैल्सिफिकेशन नहीं थी, उसकी कैल्सिफिकेशन थी बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे ना ऐसे, और वो बहुत ही फेंट थी। ये फेंट है ना, इससे भी थोड़ी सी ज्यादा फेंट थी, इस तरह से कैल्सिफिकेशन थी। जब इस तरह से कैल्सिफिकेशन थी ना, तो दोनों हिप जॉइंट इनर इनवर्ड उनकी ना, दे आर क्लोज टू ईच अदर, लाइक
आई थिंक इनवर्ड मूवमेंट को वेरस हम कहते हैं, वेलगस इज आउटवर्ड मूवमेंट। पर वो आपकी जो नी जॉइंट है उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है, और जो आपकी हिप जॉइंट है उसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं। तो आप इसको ना हिप जॉइंट की देख लें, वेलगस और वेरस डिफॉर्मिटी अकॉर्डिंग टू द हिप नी जॉइंट हम कंसिडर करते हैं कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर से नीचे तक। तो सिर्फ आपको इतना ही केस लगा हुआ था, और उसमें आप देखें कि अगर दोनों हेड ऑफ द फीमर इनवर्ड मूव कर रहे हैं तो विच डिफॉर्मिटी इज लाइक दिस। तो मैंने कहा कि सर बिकॉज ऑफ दैट कैल्सिफिकेशन थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट हुआ है और इनवर्ड मूवमेंट हो गई है। तो उन्होंने कहा क्या डिफॉर्मिटी है, मैंने कहा वेल कर सर आई थिंक आई वाज रॉन्ग, ठीक है। मैडम इसमें ना नेक शाफ्ट एंगल लेते हैं, मतलब एक हाँ स्ट्रेट लाइन फीमर के मिड से ड्रॉ हाँ, करते हैं, और दूसरी जो यहाँ है ना से, वो जी, हाँ 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 हाँ, वो और मैंने हमने दूसरी उस जो है वक्त ना वो नेक ऑफ फीमर से। तो अगर एंगल नॉर्मली आई थिंक 120 या इसी रेंज में होता है, अगर इससे 120 कम से हो जाए 135 तक होता है, जी, अगर 135 से, इससे अगर कम उससे हो जाए ज्यादा हो तो जाए, वेरस, कम हाँ हो जाए तो वेरस है और ज्यादा हो जाए तो वेलगस। मतलब वेलगस वेरस है, में मीडियली मूव करेंगे फीमर, और वेलगस में लेटरली मूव करेंगे जो हाँ शेफ्ट होगा। बस ठीक है। तो बस वेरस ही इसको इजी रखे हैं। मैंने थोड़ा सा ना वो पढ़ा था, वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही थी। वो थोड़ा सा और ही एंगल, इस एंगल से भी वो कुछ और एंगल थे। खैर ये वाला एंगल हमारी इसमें भी दिया हुआ है सोशल सिक्योरिटी में, तो ठीक है। आप इसमें ही रहे कि 120 से 125 135 तक था आई थिंक। तो उसमें आप वेरस और कैटेगराइज कर लें। बहरहाल डर्मेटोमायोसाइटिस को आपने, द केस वाज डर्मेटोमायोसाइटिस, उसके साथ फिर एसोसिएटेड चीजें चीजें जो होती है ना, फिर उसको आपने वहां पे बैठ के ना खुद ही देखना होता है। बाज़ औक़ात होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। तो थोड़ा सा अपने आपने एक्टिव होके ना करना है। ये केस मैंने शो किया था इस पे भी, तो दिस इज इजी केस, इसको बस जल्दी से आप डॉक्टर बुशरा। मुझे आएगा नहीं। कोई और ले। डॉक्टर साइमा आप ले लें। Okay, I'm provided with the multiple axial bone window images at the level of the knee joint and the proximal leg, in which I can appreciate the lytic areas are appreciated at the level of the FNG. It is involving the patellar anterior surface and is showing increased uptake on the bone scan. Another lesion is appreciated at the posteromedial corner of the proximal I think ये tibia ही है या फिर distant tibia. And on the next image, another lytic area is appreciated at the posteromedial aspect of the tibia and the I think proximal, ये इसके साथ I think fibula का partial volume आ रहा है, उसके भी head में है. So multiple lytic areas with increased uptake on the bone scan image can be due to metastatic disease process. And the other differentials for this include मैम इसमें लिटिक में और लिटिक लिगेंड्स में ब्राउन ट्यूमर आ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मेट्स ब्राउन ट्यूमर इतने क्योंकि वेल डिफाइंड बड़े स्मूथ हैं, क्योंकि एसोसिएटेड आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी एसोसिएटेड मैस नहीं है। हाउएवर आई देयर इज एरिया ऑफ आई थिंक कॉर्टिकल थिनिंग इज अप्रिशिएटेड ऑन दीज इमेजेस। ठीक है, कॉर्टिकल ब्रेक भी आ रहे हैं, आप इस तरफ से देखें ना तो जी यहाँ पे तरफ से ब्रेक भी आ रहे हैं। जी तो कॉर्टिकल। दैट वाज द सेम केस, उसमें मुझे सिटी पेट एंड तीन थे, मुझे तीसरा नहीं याद आ रहा, तो तीन थे। तो तीनों में ना उनको पेस्टेड किया हुआ था इस तरह से ना एक ही पेज पे, तो वो इंक्रीज्ड अपटेक था। तो मैंने कहा कि मेट से हो सकता है, जो कि एफटीजी भी ले रहा है। बाकी साथ ब्राउन ट्यूमर, ये दो चीजें होती हैं, क्योंकि एफटीजी अपटेक इज वेरी स्पेसिफिक इन सम टाइप ऑफ द लिटिक लियन, लाइक मल्टीपल माइलोमा में नहीं लेता। एंड जो भी आपके लिटिक लियन होते हैं तो उसमें ही कैटेगराइज कर देते हैं खुद ब खुद ना कि ये चीजें नहीं लेती, ये चीजें ले लेती हैं। तो इस तरह से ना ये आपने खुद ही कैटेगराइज करना है आई थिंक। अच्छा एक और केस भी है, ये भी है। मैम ब्राउन ट्यूमर एफडीजी अब तक लेते हैं? डॉक्टर फातिमा किसी को साइन करते हैं? मैम हाँ ब्राउन जी, ट्यूमर एफडीजी अब तक लेते हैं? देखिए जब एक्टिव फेस में होती है लिटिक लियन तो वो लेती है ज्यादातर। तो आई थिंक ब्राउन ट्यूमर लेता है। Yes. डॉक्टर अनम।
डॉक्टर आयशा। ये सिस क्यों नहीं ले रहे ये बच्चे? बोले अब तो बाकी इनके कितने दिन रह गए हैं? मैं ले लेती हूँ। 1 वीक रह गया है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लें। चलिए मैं ले लेती हूँ। I can appreciate there is a little photograph of a skeletally mature patient of foot, including the lower tibia and fibula. Here I can appreciate that there is increased mild soft tissue swelling noted surrounding the calcaneum board, with calcaneum spur is also noted at the inferior aspect, and the fat line is blurred on the posterior superior aspect of the calcaneum at the attachment site of the Achilles tendon. And the rest of the bones, there is no fracture noted. However, there is a mild slight irregularity of the tibia, distal end of the tibia. But I would like to see the frontal projection too to confirm my findings. So on these findings, there is uh, there is a possibility of Achilles tendon rupture with the fat plus running, and so I would like to do the MRI to first see with the from correlate with the ultrasound finding, and we'll do the further MRI to confirm my findings for this. ठीक है। And अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एक बिल्कुल ही बहुत ही स्मूथ किस्म की साइनस नजर आ रही थी, बिल्कुल साइनस ट्रैक था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही था तकरीबन। मैंने भी ऐसे ही कहा था कि देयर इज प्लांटर, मतलब ल्यूसेंसेस आर नोटेड इन द रीजन ऑफ द प्लांटर अटैचमेंट एंड प्लांटर, ये सारा कुछ मैंने कहा था। लेकिन जब मुझे वो ल्यूसेंसी नजर आई, देन दे आस्क्ड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लांटर्स पर। तो मैंने कहा सर रबिंग की वजह से मोस्टली वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब मुझे साइनस नजर आई तो आई जंप टू द diagnosis of there is subtle sclerosis of the calcaneal plantar spur associated with the sinus tract. So most likely this is a case of the plantar spur osteomyelitis with the placa formation. I cannot appreciate। हाँ, मुझे थोड़ी सी स्क्लेरोसिस थी तो मैंने उसको बना दिया था। वो क्या होता है इसमें, इनवल्कुरम को बना दिया था, और उसमें मैंने सेक्वेस्ट्रा, मैंने कहा मुझे इतनी अच्छी तरह से नजर नहीं आ रही, इतना छोटा सा स्पर और उसमें बस स्क्लेरोसिस ही थी। सो बस उसको मैंने इस तरह से ही किया था। तो खैर, ल्यूसेंसी नजर आ रही थी इसमें? हाँ ल्यूसेंसी बहुत अच्छी नजर आ रही थी। अदरवाइज इसी तरह का ही था। इस तरह में आप कैसे आप अचानक से कह सकते हो कि ना इनकी ये प्लांटर्स पर ओस्टियोमाइलिटिस है? सो दैट ल्यूसेंसी लीड्स मी टुवर्ड द डायग्नोसिस। तो एक आध तरह से चीज आती है जो आपको ना डायग्नोसिस की तरफ ले जाती है। एग्जामिनर भी थोड़े हेल्पफुल थे, उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर नहीं किया था। लेकिन ये है कि दिस इज द केस ऑफ, ये तो खैर मैंने नेट से लिया है, तो ये ओस्टियोमाइलिटिस का ही केस है। प्लांटर स्पर का आप देखें इसमें थोड़ी सी रेगुलरिटी ज्यादा आ रही है, और इस तरह से ना आपने प्लांटर स्पर को इग्नोर नहीं करना। हो सकता है वहां पे आपको वैसे ही प्लांटर उसका एक्लीज टेंडन का ही रप्चर दिखाएं, बट अगर ये भी आ जाए साथ तो आपने इसको भी कंसीडर करना है एज ए फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट केस था इसका। और मैं सोच रही हूँ कि वुमेन इमेजेस के भी देख लें, के बाद में फिर ना नहीं टाइम मिलता। उसके भी थोड़े से केसेस थे लास्ट, उसके बाद आपके पास भी टाइम नहीं होगा। डॉक्टर फातिमा, आप ना केस असाइन करती जाएं, और
हैंड रेज करें प्लीज। हैंड रेज करते हैं प्लीज। हैंड रेज नहीं करा कोई भी, मैं तो रैंडमली कर रही हूँ। एक डॉक्टर साइमन ने हैंड रेज किया और किसी ने भी 37 पार्टिसिपेंट हैं। कर लें बच्चों, खुद ही कर लें। डॉक्टर उजाला, आप ही हैंड रेज नहीं करी। जैनब, जैनब शोएब, डॉक्टर रेडियो, डॉक्टर आईफोन, इन्फिनिक्स, हिरा, हरीम, बहुत सारे लोग हैं। 7 केसेस हैं तो 7 हैंड रेज तो हों एटलीस्ट। 5 6 7, दो और। दो और कर एक मैं लेने। ले लूंगी ना डॉक्टर। ठीक है। हाँ चलो मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं ये कर रही हूँ। बस हम ना 11 बजे तक फातिमा इसको हमने एंड कर देना है। ठीक है। एक मिनट। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट केस, वुमेन इमेजिंग एंड पेड्स। ठीक है डॉक्टर बुशरा। Okay. These are coronal and axial images of contrast and unseated abdomen and pelvis, in which I can appreciate there is heterogeneously hypo-enhancing hypodense lesion within the right lobe of the liver. And going down into the peritoneum, I can appreciate there is diffuse thickening and nodularity of the omentum. And I cannot appreciate any lesion within the pelvic region, but I want to see the axial images at the level of the pelvis. Based on these findings, these are metastatic deposits within the liver and peritoneum. मैट्स फॉर व्हाट? प्राइमरी क्या Um, होगी? uh, as this is a station of women imaging, and peritoneal carcinosis is most commonly seen within ovarian regions, ovarian carcinoma. ठीक है, वुमेन इमेजिंग के साथ पीरियड्स भी होता है। ठीक है, तो आपने ना पीरियड्स को नहीं भूलना। आपने फर्स्ट आपने ये कहना है कि व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट। इसमें एज भी पीरियड्स का ही, ये बच्ची ही है, पीरियड्स का ही केस है ये। वहां So पे I जो इस would तरह like के, to हाँ see आप the kidney. देखिए, एज ऑफ द पेशेंट आपने लाजमी पूछनी है। इस तरह का ही केस था जो कि मुझे डिस्प्ले हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मुझे एज नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा सर व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट। उन्होंने कहा 8 ईयर फीमेल है। जब 8 ईयर फीमेल आ गई, उसमें मुझे हेपेटिक मैस नजर आया, इस तरह से था कोई उसमें मुझे एनेरिज्मल लाइक ब्लश ऑफ कंट्रास्ट नहीं मिला। ठीक है, उसकी इन्हांसमेंट भी इसी तरह से ही थी, बल्कि ये तो थोड़ा सा इरेगुलर है, वो बड़ा ही वेल डिफाइंड सा था। हेपेटिक सिरोसिस नहीं थी, नोड्यूलर मार्जिन नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल से था। So I said, this is the well-defined hypodense mass lesion within the right lobe. क्या उसके साथ मुझे नोडुलैरिटी नहीं मिल रही, बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। सो मोस्ट लाइकली दिस इज द केस ऑफ हेपेटोब्लास्टोमा। तो बाकी सारे आपने बता देंगे कि इसकी एनहांसमेंट इतनी आ रही है, डिलेड फेस में इतना ज्यादा नहीं है। तो एज द एज ऑफ द पेशेंट इज 8 ईयर ओल्ड, सो आई विल कंसिडर द हेपेटोब्लास्टोमा प्रोसीड। हाँ जी, एएफपी लेवल का हम इसके साथ करवाएंगे। मैंने उसमें से यही भी कहा था, कार्सिन एम्ब्रियोनिक एंटीजन, उसका भी हम लेवल करवाएंगे। एंड उसके साथ उन्होंने कहा था ओके पोर्टल वेन, मैंने उसमें जो मिस किया था ना, दैट वाज द पोर्टल वेन इन्वेजन। ठीक है, पोर्टल वेन उसमें इन्वेड थी। हेपेटोब्लास्टोमा के जो मैंने इसको बाद में पढ़ा, तो उसमें मोस्टली दिस इज द पीक जो एज होती है उसकी 5 ईयर्स तक होती है। ठीक है, और एचसीसी इट्स बच्चों में एचसीसी होता है। ठीक है, बच्चों में एचसीसी होता है, 5 से बट ऊपर. पीक, हाँ जी 5 से ऊपर होता है, और पीक एज उसकी होती है 12 to 9, नहीं आई थिंक 11 to 12 ईयर्स और 12 to 14 ईयर्स। तो 8 ईयर आपकी मिड में आ रही है। हेपेटोब्लास्टोमा भी हो सकता है, एचसीसी भी हो सकता है। ठीक है, बट आपने हिस्ट्री लेनी है, वायरल मार्कर उसमें देख चेक करवाने हैं। ठीक है,
तो उसमें ट्यूमर इन्वेजन लाजमी देखनी है. इन द केस ऑफ हेपेटोब्लास्टोमा, इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनी वेसल, देन इट बिकम अनरिस्ट्रक्टेबल. ठीक है. उसमें हमारे मेरे पास ट्यूमर इन्वेजन थी. आई मिस्ड दैट. उन्होंने पूछा कि, मैंने कहा जी सर ये इन्वेजन आ रही है, उन्होंने खुद मुझे कहा के. तो फिर उसके बाद दे आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैंड थ्रोम्बस एंड ट्यूमर थ्रोम्बस. सो ब्लैंक आप थ्रोम्बस बताएं. इनहांस नहीं करता, ठीक है. तो और ट्यूमर थ्रोम्बस इनहांस करता है, और उसकी ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक मैच करी होती हैं टू विद द ब्लैंक ट्यूमर. ठीक है. ब्लैंड थ्रोम्बस जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द एनी डीवीटी और एनी coagulation hypercoagulation abnormality within the body that leads to the tumor thrombosis, and that leads to the thrombosis of the blood within the veins or any other region. So that will not enhance, that will not expand, that will not show restricted diffusion or diffusion images, and also do not show FDG uptake. But the inverse of this is all for the tumor thrombosis, that will enhance, that will show tumor expansion, that will show the restricted diffusion or the diffusion images and FDG uptake. ठीक है. चार तो आपको एटलीस्ट आ जाने चाहिए उस वक्त. ठीक है. उसका सर ये जरूरी है. क्लासिफिकेशन दिखाएगी हेपेटोब्लास्टोमा क्लासिफिकेशन जरूरी है? हाँ, होनी तो चाहिए वैसे. हेपेटोब्लास्टोमा में मोर देन 50% आपकी कैल्सिफिकेशंस होती हैं. हाइपरवास्कुलर मैस होता है. ठीक है. केवल इन्वॉल्वमेंट जब होगी तो उसमें हमारे पास हेमेंजियोएंडोथेलियोमा उसकी डिफरेंशियल में आता है, बट आपकी हेमेंजियोएंडोथेलियोमा के बाकी फीचर्स उसमें होने चाहिए, लाइक ब्लश ऑफ कंट्रास्ट और वो सारी जो पुलिंग हो जाती है इन लार्ज वेसल्स की. तो इसमें मेरे ख्याल से अगर आपके हाइपोवेस्कुलर या पास हाइपरवेस्कुलर में आपने नहीं क्या कहा है? हेपेटोब्लास्टोमा इज हाइपरवास्कुलर मैस. ठीक ओके. है. इनहांसिंग मैस होता है. ठीक है. लेकिन ये है कि हेमेंजियोएंडोथेलियोमा इज मच मोर देन दैट. उसमें तो आपके एंडोथेलियल लाइक वो होती है ना, ब्लड पूल्स होते हैं. ठीक है. मेलफॉर्मेशन के. तो इसमें मेरे ख्याल से अगर आपका 9 to 10 ईयर का बच्चा आ रहा है और उसके साथ इस तरह का मैस है, तो आपने हेमेंजियोएंडोथेलियोमा, हेपेटोब्लास्टोमा और HCC इन दोनों को कंसीडर करना है. और अगर इन्वेजन है वेसल की तो टुवर्ड मोर HCC. फिर इसमें बाकी डिफरेंशिएशन, वायरल मार्कर, EFP एंड बायोप्सी. बायोप्सी इज द हिस्टोपैथोलॉजी. तो आपकी डेफिनेट डायग्नोसिस होता है ना, तो यू विल प्रोसीड विद द हिस्टोपैथोलॉजी. मैं उसमें उन्होंने कहा था आप नेक्स्ट क्या करवाएंगे, देन आई फॉरगेट अबाउट. मैंने मतलब मुझे नहीं आ रहा था, तो कहते हैं कि आप इसमें. मैंने कहा ऐसा बायोप्सी हम तो लाजमी करवाएंगे इसमें. तो कहते हैं लाजमी का क्या मतलब है. मैंने कहा सर बिकॉज हेमेंजियोएंडोथेलियोमा के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए. क्योंकि अगर हेमेंजियोएंडोथेलियोमा होगा तो आई आई डोंट थिंक सो कि हम उसमें बायोप्सी कराएंगे, बिकॉज दैट इज हाइपरवास्कुलर और उसमें ब्लीड के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट केस. Dr. Jala. I am provided with contrast enhanced study, uh, ascending urethrogram in which I can appreciate there is opacity. Ascending urethrogram near this is IVU study, excretory phase, in which I can appreciate there is opacification of the urinary bladder. Left ureter is also visualized, and there is simultaneous opacification of the triangular shaped structure which is located posterior to the urinary bladder. This is likely vagina, and the contrast is dribbling through the vagina. So this is likely a case of vaginal fistula. Next, I would like to know the history of any surgical intervention in this patient, because this will be the cause of the vaginal fistula, or history of radiation, or previous history of pelvic inflammatory disease, tuberculosis, or other inflammatory bowel diseases, because all these conditions causes the vaginal fistula. Next, I will refer the patient to the gynecological team for further management. वेरी गुड. एक्सीलेंट. दिस इज द आपने हर चीज उसकी बेहतरीन बता दी. एंड आपने अपना केस आई थिंक 2 मिनट्स में ना वाइंड अप कर दिया. दिस इज एक्सीलेंट अप्रोच एंड एक्सीलेंटली आपने बिल्कुल IVU कह दिया, उसमें आपने कह दिया कि साइमल्टेनियस स्पेसिफिकेशन, कॉजेज बता दिए और आपने उसको रेफर भी कर दिया. दिस इज द की ऑफ. आपने
टाइम पे ना आपने ये नहीं बताते जाना, अच्छा जी दिस इज द ब्लैडर है, देन ओपेसिफाई हो रहा है और उसके मार्जिन वेल डिफाइंड हैं और उसमें मुझे कोई फिलिंग डिफेक्ट नहीं नजर आ रहा, ठीक है बता दें इसको, लेकिन अपने टाइम को मैनेज करते हुए बताएं। आपने ना विद इन 2 to 2.5 मिनट तक आप अपना केस को ट्राई करें कि आपने उसको वाइंड अप कर देना है, रेफर करके, उसकी ट्रीटमेंट करा के, ठीक है। अगर आप इस तरह से फाइंडिंग्स, तो आप अपने लिए भी थोड़े से मसाइल पैदा करेंगे। और हाँ, सम टाइम आप स्टक हो जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप स्टक हो गए हैं ना, दैट इज नॉट द इशू। रिलैक्स रहना है आपने। एक तो रिलैक्स रहना है, एक आपका पिछला स्टेशन खराब हो गया तो टेंशन नहीं लेनी, पिछला केस खराब हो गया, 7 में से 6 केस आपको नहीं आए सही तरीके से, लेकिन आपने बोल देने हैं और आपने उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो पिछले 2 स्टेशन थे वो बिल्कुल ही फेल हो गए थे, तो मैं क्यों, मुझे इतनी जल्दी क्यों फिर मैं उतार ली, मुझे ये नहीं आइडिया था, शायद मैंने ठीक बताया होगा या शायद अप टू द मार्क मेरी तरफ से वो नहीं था। लेकिन एट थर्ड स्टेशन पे भी मैं सही मतलब उस वक्त उस जगह पे आपने मौजूद रहना है जिस जगह पे आप बैठे हो, पिछली जगह पे नहीं जाना, फोकस्ड रहना है, फोकस्ड। मैम ये रिट्रोग्रेड रिट्रोग्राफ कर दी। रिट्रोग्रेड नहीं था, आईवीयू था, देखें आप, वो नजर आ रहा है, यूरेटर नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। अच्छा पहले उसमें मुझे देखिए, नहीं जूम लगा था डिवाइस कि हुआ होगा, ये ठीक है मैंने अभी कंट्रास्ट देखा वो जूम थ्रू से। दिए है, अच्छा यूरेथ्रा के थ्रू, रिट्रोग्रेड, लेकिन वो हाँ ड्रिबलिंग है। रिट्रोग्रेड में आपको यूरिथ्रा पे फोकस्ड होता है आपका ज्यादातर, रिट्रोग्रेड में सिस्टोग्राम आप कह सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टोग्राम में रिफ्लक्स रिफ्लक्स आएगा, लेकिन वो खैर वहां पे आपको रिफ्लक्स तो नहीं हो सकता है, अब ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि इट कैन बी अ रिफ्लक्स सिस्टोग्राम, बट खैर इस पे आई डोंट थिंक सो कि वो आपको स्टक करेंगे। इसमें जो भी है इसको वो कह देते हैं, सम टाइम जब आप फंसते मैम ये हैं ना तो सर्जिकल आपको बता। स्टेपल्स हैं हाँ जी, राइट साइड सर्जिकल पे। स्टेपल्स, हाँ जी बिल्कुल हैं। ये सर्जिकल स्टेपल्स भी आपकी ना हेल्प कर सकते हैं कि दिस इज द पोस्ट सर्जिकल केस, ठीक है। और ठीक है, ये केस इसी तरह से ही है। डॉक्टर सुबा। चले मैं ये ले लेती हूँ डॉक्टर मरियम, फिर बाकी कोई ठीक और। है, ठीक है डॉक्टर फातिमा, आप ले लो। This is the one of the spot images of the barium meal series in which I can appreciate of a pediatric age group patient, in which I can appreciate the contrast is seen of pacifying the stomach and the proximal duodenum. However, I can appreciate the duodenal junction is on the right side of the spine, and there is a distal corkscrew appearance of the uh, distal bowel is noted. And I can also appreciate few multiple dilated cut loops. It So the findings are suggestive of midgut malrotation with midgut valvulus. So as it is a surgical emergency, so I will immediately refer the patient for management. However, ultrasound can also be performed to see the swirling of the SMV around the SMA. वेरी Um, गुड। and further, it will be surgically referred as it is an emergency, as it can lead to the gut ischemia. क्रिटिकल वन में आएगा ये। जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर फातिमा, एक्सीलेंट अप्रोच, एक्सीलेंटली आपने कहा पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, इसमें आपने कहा कि कॉक्स क्रियोपेरेंस आ रही है और डीजे जंक्शन जो है ना वो डाउन है और टुवर्ड द राइट है। अच्छा, जो मैंने इसको कहा था ना, मैंने कहा था कि जो दिस इज द, थोड़ी सी मैं ना, जाहिर बात है नर्वस थी, हर कोई होता है, मैं भी थी परेशान, तो मैंने इसमें कहा कि सर ड्यूडिनल जेजिनल जो है ना वो, मैंने उसको ड्यूडिनल जेजिनल जंक्शन नहीं कहा था, मैंने कहा था कि ड्यूडिनम इज जेजिनम इज ऑन द राइट साइड, एंड उन्होंने कहा था ड्यूडिनल जेजिनल ये क्या, तो मैंने कहा मुझे याद आ गया कि ड्यूडिनल जेजिनल जंक्शन कहना है आपने, मैंने कहा सर ड्यूडिनल जेजिनल जंक्शन इज ऑन द राइट साइड, और मैंने कहा कि सर दिस इज द केस ऑफ मैल रोटेशन, आई कैन नॉट, मैंने कहा कि ना valvulus wo, sir, for the valvulus I will ask history of the patient, so if the patient is present with the acute abdominal pain and the vomiting, तो उन्होंने कहा था किस टाइप की वॉमिटिंग होगी, मैंने कहा बिलस वॉमिटिंग होगी उसमें ना,
तो कहते हैं ठीक है। और देन मैंने कहा सर, देन दिस इन द केस ऑफ मेल मिडगट वॉल्वुलस। हाँ, लेकिन मुझे मिडगट वॉल्वुलस क्या देना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं एक स्टेप पीछे उस पे रही कि मैं हिस्ट्री लूंगी और उस पे मैं देखूंगी कि उसको वोमिटिंग है, तो ये तो मुझे लगा कि ये आप कह देंगे, क्योंकि आपको कॉक्स की अपीयरेंस तो आ रही है, वहां भी आ रही थी, पूरी नहीं आ रही थी, थोड़ी सी बहुत ही ऐसे सटल सा ही था। ठीक है, तो उसमें मैंने बिल्कुल सेम फातिमा की तरह कहा था कि मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी, उसमें एसएमबी का रिलेशन देखूंगी। And then they asked what is the critical stage for this. I said this is emergency, so this is the critical stage 3। मुझे नहीं पता था critical उस वक्त मुझे नहीं आती थी, मतलब मैंने रिसेंटली नहीं रिवाइज की थी। तो उन्होंने कहा अगर सर्जिकल इमरजेंसी है देन दिस इज क्रिटिकल 1। उनका यस सर, मतलब मुझे नहीं आती थी लेकिन फिर भी ना मैंने 3 कह दिया था। नहीं, उन्होंने खुद कहा था 3 होगा या 1 होगा, मैंने कहा 3। उन्होंने कहा इमरजेंसी आप कह रही हैं, तो उन्होंने कहा खुद। अरे वो बहुत अच्छे थे दोनों, मुझे ना इतना नहीं तंग किया था जितने पहले दोनों किया था। क्रिटिकल 4 स्टेजेस बता देंगे? क्रिटिकल 1, 2 और 3 होती हैं। डॉक्टर फातिमा बताएं इसको। अच्छा, क्रिटिकल 1 जो होती है जिसके अंदर जैसे ये नीमोथोरैक्स है, नीमोपेरिटोनियम है, हाँ। ये इमरजेंसीज है, मिडगट वॉल्वुलस है, सीकल वॉल्वुलस है, हम्म। इन ब्रेन के अंदर हेमरेजेस हैं, हाइड्रोकेफलस है, हीमाटोमास है, दे शुड बी इमीडिएटली रेफर्ड एंड इन्फॉर्म्ड। वैसे तो बुकिश बातें हैं कि विद इन 1 आवर, लेकिन विद इन 1 आवर का भी टाइम नहीं होता कि उसके अंदर हाँ। ना। तो इसके अलावा जो ग्रेड 2 है उसके अंदर ये है कि विद इन द 12 आवर्स आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और ग्रेड 3 है जैसे कि ट्यूमर्स होते हैं हम्म। जिसका आप डिले भी कर सकते हैं 1 मंथ्स में उसमें ले ना, जाते हैं विद इन वो। हाँ, 24 आवर्स, 24 24 आवर्स आवर्स मंथ में। 48 आवर्स, 48 आवर्स। उसकी टेबल मैंने शेयर भी की थी ग्रुप में ना, तो आप उसकी टेबल देख लें, हाँ उसकी जी। टेबल में ड्यूरेशन भी लिखे हुए हैं और कॉजेज भी लिखे हुए हैं, तो उसको देख लें। हो सकता है ये अगेन ये क्वेश्चन आ जाए, तो दिस इज अनदर केस। जी मैं ले लूँ? जी ले लें। कौन है अभी? हेलो। मैं फाइजा। ठीक है, ओके डॉक्टर फायजा, ठीक। I've been provided with the coronal image of CCP abdomen and at the level of the kidney. And I can appreciate that there is multiple small cystic areas noted and diffuse scattered throughout the both kidneys. And the kidneys are slightly appearing bulky, enlarged, and there are multiple cystic areas also noted within the liver. And as this is the post contrast, oh no, this is yes, I think this is post contrast image. I would look, correlate with the plain film too. And the adrenals, not appreciated to me. Rest of the spleen is mildly splenomegaly is also appreciated. And the visualized lung field appearing normal. Bone window is not available, however, the appearing vertebrae and bones appearing normal. So summarizing my finding, this is most likely, and the liver span is markedly reduced and small and likely due to. So this is most likely case of polycystic kidneys. If the patient is a pediatric patient, this is a autosomal recessive polycystic kidney disease with hepatic fibrosis and liver cyst too. And so further इसका मैम क्या करूँगी? Further, I would like to do the counsel the patient and do the RFTs and LFTs to see for the function, and also ultrasound correlation of the kidneys and liver. पॉलीसिस्टिक तो नहीं है, कोई और बताए इसका डायग्नोसिस। बहुत ही कॉमन केस है। अच्छा, अगर आप देखा जाए ना, मतलब पार्ट 2 के लेवल पे, दिस इज द इजीएस्ट केस एवर सीन।
क्योंकि ये केस पार्ट 2 के लेवल पे आपको आना चाहिए, और मैडम बहुत ही ये कौन इम्पोर्टेंट है? पैथोलॉजी है। तो मैं फिर अगर बिलरी चेक का वो कर रहे हैं तो मतलब किसी को नहीं समझ आ रहा। 37 करोगी पार्टिसिपेंट थे। मेडल। डॉक्टर फायजा, आप ही दोबारा इसको अटेम्प्ट करें, कोशिश हम्म। करें, जिसका केस है वही ले दोबारा ना। डॉक्टर फाइजा आप ओके। बताएं। There are multiple cystic areas noted within the liver. हम्म। These are and these are clashing with one another few, giving a linear tubular branching pattern. So it could be, however, extra CBD I can't visualize, so it could be Caroli disease with medullary sponge kidneys with वेरी गुड, bilateral वेरी है। गुड, वेरी गुड। बिल्कुल डॉक्टर फाइजा, देखें, एक ये सेकंड में ना आपने अपना तो होगा। डायग्नोसिस बता दिया, मतलब अच्छा, आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे नहीं है कि अगर आपने कह दिया ना कि पॉलीसिस्टिक है और सिस्ट है, ठीक है, तो एग्जामिनर हो सकता है आपको हिंट देगा कि नहीं, सिस्ट नहीं है। तो फिर आपने ना ऐसे ही कि दिस इज द केस ऑफ कैरोली डिजीज विद द मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी। बेसिकली ना आप देखिए ना, अगर पॉलीसिस्टिक हो तो सिस्ट होनी चाहिए, मल्टीपल ऑल कैलिसिस्ट में होनी चाहिए, कॉर्टेक्स में भी होनी चाहिए। कॉर्टेक्स तो स्पेयर है, मेडल्ला ही इन्वॉल्व है। मेडल्ला में हमें हाइपोडेंसिटीज नजर आ रही हैं, ठीक है। कैल्सिफिकेशन होती हैं, मोर देन 80% होती हैं, लेकिन मुझे ये नेट से मिला था तो मुझे इसमें नहीं थी, आई थिंक वहां भी नहीं थी, ठीक है। जब भी आपको वो दिखाएंगे ना मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी उसके साथ केरोली, या फिर केरोली के साथ मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी, ये दोनों आपने लाजमी ढूंढनी है, ठीक है। कोलिडोकल सिस्ट होती है, उसके साथ मेडुलरी स्पॉन्ज दिखाते हैं आपको। और कौन सी इसकी एसोसिएशन है? इसके एसोसिएशन में हॉर्स शू किडनी होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास बैक विद वाइडमैन सिंड्रोम, हेमी हाइपरट्रॉफी, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। वेल्म्स ट्यूमर आ सकता है, उसके साथ हो सकती है, ठीक है। स्ट्रीक्स है ना, पेंट ब्रश स्ट्रीक्स होती हैं बेसिकली। अब देखिए ना, स्ट्रीक की एरियाज आ रहे हैं मेडुला में। तो वेरी गुड डॉक्टर फाइजा, आपने 80% मार्क्स तो अचीव कर लिए ना। कैरोली डिजीज विद मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी एसोसिएशन तो आपको मिल गई, बस ठीक है। फिर आपने बाकी यूरोजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज देख लेनी है, उसकी पेल्विस इसमें पेल्विक फिर एरिया। मार्क्स मिले या फिर एकदम से डायग्नोसिस चेंज हो जाए? हाँ जी, मैंने किया था ऐसा, एक दफा मैंने किया था। मैंने अब जो पिछली क्लासेस थी उसमें बताया, एक दफा मैंने इंसेप्टोमेलेशिया जो है उसमें किया था। वो जो लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट थी उसको मैंने बनाया था न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है। हो सकता है नहीं दिए हो, चलो ठीक है, एक स्टेशन गलत हो गया होगा, हो सकता है नहीं दिए हो, लेकिन यह है कि इस पे आपने ना वो नहीं होना कि नहीं मेरा तो एक केस हो डॉक्टर गया। मरियम, एक क्वेश्चन है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, इन्होंने पूछा है चैट में। इसमें नहीं, देखें, जब आप इसमें आप देखें, इसमें ना कैरोली डिजीज में आप एमआरआई करा सकते हैं, ठीक है। और टू सी टू कंफर्म द कैरोली, इसमें आप करा सकते हैं आईवीयू। जो ये जो हैं, लाइक आपने ना फ्लावर ऑफ बुके अपेयरेंस देख लेंगे, और कैरोली को आप अपने एमआरसी एमआरसीपी एमआरसीपी करा लेंगे इसमें। तो बस इसके अलावा मुझे नहीं समझ आ रही है और क्या होगा। और इस तरह के केसेस में अगर आपने डायग्नोसिस बता दिया है ना, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। आपने दो चीजें पकड़ ली और उसका डायग्नोसिस बता दिया एट द सेम टाइम, तो आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। अच्छा, इसके अंदर डॉक्टर मरियम, मैं ऐड करना चाहूंगी कि जी। एक तो अल्ट्रासाउंड कोरिलेशन कर सकते हैं ना मेडलरी स्पॉन्ज किडनी के लिए, कि आपको एकोजेनिक किडनी नजर आए, कोई नेफ्रोकैल्सिनोसिस नजर आए जो कि अच्छी नजर आ हाँ, जाएगी अगर आपको इतनी नजर आ रही। ठीक ठीक है, है, इसके अलावा जो कैरोली डिजीज की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है ना, जैसे कि मल्टीपल इंट्राडक्टल स्टोन्स हैं या कोई फिलिंग डिफेक्ट्स, आपको एमआरसीपी भी मिल जाएंगे ना। तो आप कह ठीक है, सकते हैं कि फर्दर मैं करा लूंगी, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये क्योंकि डायग्नोसिस इसी पे बन रहा है, तो फिर फर्दर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो देन आई विल डू फर्दर इमेजिंग। फर्दर तो ठीक है, वैसे फिर इमेजिंग नहीं रिक्वायर्ड होगी। ठीक।
Next case, Dr. Saima. Okay, I'm provided with the spot image of the hysterosalpingography, and the cannula is seen in situ. And I can appreciate that the contrast is seen of specifying the uterine cavity, which appears to be having a single uterine horn, and contrast is seen going into the fallopian tube on the right side in the right hemipelvis. And there is extravasation of the, there is free spillage of the contrast at its distal end. I cannot appreciate the a small filling defect is appreciated within the center of the endometrial cavity. This can be a air bubble or any other filling defect. With I will further correlate with ultrasound, and I will further correlate with the delayed images. I cannot appreciate any other horn on the left side. So this is likely a case of unicornuate uterus with a single fallopian tube. However, this can be a case of uterine diadelphus with only the contrast going, or there is cannulation of the cyst side. I would this patient for any other separate cervical opening in this patient. Otherwise, this is a case of the unicornuate uterus with this ठीक है Maryum. single uterine cirrhosis surrounding the left SI joint, which could be suggestive of sacroiliitis. I will correlate the findings of back pain in this patient. Sclerotic changes involving at the level of L5 S1 intervertebral disc space, which could be suggestive of spondylitis in this patient. However, the bilateral hip joints are not. ठीक है आप इसमें So the अल्ट्रासाउंड final करेंगी diagnosis is unicoordinate and correlate with the ultrasound of this patient for final diagnosis. अल्ट्रासाउंड से आपको रिलेट करेंगी यूरोजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज देखेंगी लाइक इट इज एसोसिएटेड विद द हॉर्सशू किडनी और बाकी सारी हाँ केयू भी लाजमी करते हैं केयू के साथ पेल्विस का स्कैन करते हैं पेल्विस के साथ केयू भी लाजमी करते हैं ठीक है अच्छा इसके आप जल्दी जल्दी ना यूट्रस की जो एब्नॉर्मलिटीज हैं 7 टाइप्स वो बता दें मैम टाइप 1 में यही यूनिकॉर्डिनेट होता है, 2 के अंदर यूट्राइन डायडेल्फिस होता है, 3 में यूनिकॉर्डिनेट यूनिकॉलिस एंड बाइकॉलिस एंड देन उसके बाद मैम 4 प्रिसेप्टेट है, देन आर्कुएट है, और उसके बाद यूट्राइन एजेनेसिस या उसके बाद टी शेप है, डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रोल. ठीक है वेरी गुड एक्सीलेंट नेक्स्ट डॉक्टर फातिमा दे दें किसी को नेक्स्ट कौन रह गया अभी जिन्होंने हैंड रेज किया इसमें से कोई रह गया अच्छा चलिए मैं बताती हूँ इसको डॉक्टर ठीक है बताएं This is the multiple images of the MRI T1, T2 weighted and the axial and sagittal images of a female patient in which I can appreciate there are multiloculated cystic collection or multiloculated cystic areas are noted involving the right adnenaxal region. I can appreciate the uterine cavity, single uterine cavity with a central endometrium, and on the T1 post contrast images, I can appreciate there is only a marginal post contrast enhancement is noted, and I cannot appreciate the bilateral ovaries separately, and I can also appreciate there is a congestion of the vessels is also noted, and on the I think the last F images is DWI images or the star images in which I can appreciate there is a hyperintense signals are noted within these dilated collections or the fluid collections. So the findings are suggestive of tubo-ovarian abscess on these images.
I will correlate with the history of the patient. If the patient presented with the history of the fever and there is a pelvic pain, and then it top of the differential is the tubo-ovarian abscess. Other differential diagnosis may include the pyosalpinx or the hydrosalpinx. If there is patient has a history of infertility, ठीक है so यही मतलब डिफरेंशियल है मेरे इसके ऊपर ना. और इसके अलावा I cannot appreciate any other uterine or the vesical abnormality. ठीक है अच्छा तो, वो जो केस था ना एग्जाम में, तो वो बहुत ही अजीब, बहुत ही गंदा था. मतलब उसको बंदा देख के ना नहीं समझ आ रही थी कि ओवरीज कहाँ है, यूट्रस कहाँ है. एक अजीब सी कलेक्शन बाहर इतना लग रहा था, क्योंकि उसकी रिंग एनहांसमेंट पेरिफेरल एनहांसमेंट थी. तो उसको मैंने मुझे 50% पता लग रहा था, 50% मुझे इतना नहीं पता लग रहा था. हाँ, मुझे एक इमेज पे लगा था कि यूट्रस आगे पड़ी है, वो भी सेजिटल पे. सो मैंने उसको ट्यूबोवेरियन एब्सेस ही बनाया. देन आई विल प्रोसीड विद द कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कार्सिनो. हाँ, सीई लेवल कराते हैं ना, सीई लेवल करवाऊंगी मैं उसमें, टू रूल आउट एनी मैस लियन. एंड आई विल एस्पायरेट द लियन एंड साइटोलॉजिकल. मैं उसमें वो भी करवा लूंगी. तो उन्होंने कहा कि आप कैसे इसको करेंगी, इसको ड्रेन करेंगे या फिर इसको. मैंने कहा सर अल्ट्रासाउंड से हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड करेंगे, उसमें ब्लैडर एम्प्टी कराएंगे, और साथ आपकी जो कलेक्शन पड़ी होगी उसमें आपने सिरिंज डाल के उसको निकाल लेना है. तो कहते हैं ठीक है. तो इस तरह से आपने उसका एब्सेस ड्रेन कर लेनी है. मैंने कहा था कि लार्ज एब्सेस है तो हम इसको ड्रेन करेंगे, तो विद द गायनोकोलॉजिकल टीम. तो साइटोलॉजी कराएंगे, इसमें हम ये लेवल करवा लेंगे टू रूल आउट एनी मैस लियन. समटाइम एग्रेसिव मैस भी हमारे साथ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो लेकिन कलेक्शन में भी रेज्ड होता है, तो जो डेफिनेट डायग्नोसिस होगा वो या तो साइटोलॉजी में आएगा या हमारी हिस्टोपैथोलॉजी में आएगा, क्योंकि पीआईडी में भी सीआई लेवल रेज होता है. CA 125, सॉरी मैं CA कह रही हूँ बार बार, CA 125. मैंने वहां भी कहा था कि हम CA 125 लेवल करवाएंगे. और जो रेज पीआईडी में भी होता है, तो डेफिनेट डायग्नोसिस हमारा उसका साइटोलॉजी पे और हिस्टोपैथोलॉजी पे होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड ये वो, तो हम इसको ट्यूबोवेरियन एब्सेस बनाएंगे. अच्छा, ये लास्ट केस है, इसको हम कर चुके हैं काफी दफा. तो ये डॉक्टर फातिमा, आप इसको वाइंड अप करते हैं. अच्छा ठीक है. This is one of the spot images of the CC view of the mammogram, in which I cannot appreciate type B ACR breast, in which I can appreciate there are powdered or the amorphous calcification are noted within the segmental distribution, and there is no skin thickening or no nipple retraction is noted, as I cannot these calcifications are likely malignant etiology, as I cannot see any mass lesion within the this mammogram. So I will further proceed with the stereotactic biopsy of the patient. Stereotactic biopsy is performed under mammographic guidance or the ultrasound guided when we will not appreciate any mass lesion on the mammograph, then we will do the stereotactic biopsy. वेरी गुड. We will बाय रेट कौन सा है ये? by rate 5 by rate 5 से नहीं, by rate 4C कहेंगे, by rate 5 हाँ, B और 4C. ठीक है. ठीक है. स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करानी है, इसमें आपने सीटी करा लेना है फॉर द स्टेजिंग ऑफ द डिजीज. अगर आपको मेलिग्नेंट मिल गई है उस पे हिस्टोपैथोलॉजी पे. स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी हमने वो अच्छी तरह से पढ़ ली थी. एंड एमआरआई पे कुछ नजर नहीं आया था. मैंने कहा था वो परसों परफॉर्म एमआरआई, तो उन्होंने कहा एमआरआई पे हमें कुछ नजर नहीं आया. मैंने कहा सीटी, तो उन्होंने कहा नेवर एवर डू सीटी स्कैन फॉर एनी ब्रेस्ट लियन. मैंने कहा नहीं सर, मैं तो स्टेजिंग के लिए करवाऊंगी. मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज तो थी, लेकिन मैंने उस वक्त अपना फौरन से वो बदल दिया था कि मैं तो सिर्फ स्टेजिंग के लिए करवाऊंगी. तो वो मान भी गई थी, शुक्र है. तो सम टाइम आपने खुद भी हैंडल कर लेना होते चीजों को. तो ठीक है, थैंक यू सो मच. बस थैंक यू ठीक है. डॉक्टर. हाँ, बाकी अब आपका एग्जाम करीब है, तो मुझे लगता है क्लासेस की इतनी जरूरत नहीं है, आप लोग खुद पढ़ें इसको. ये मेरे लास्ट इमेजेस रह गए थे, तो मैंने कहा इसको शेयर कर दूँ. हो सकता है ये लाहौर सेंटर था मेरा, तो मे बी लाहौर में ये रिपीट हो जाए. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास. थैंक यू ऑल ऑफ Thank you so much, Dr. Maryum. यू.